Hi Anjali, welcome on Europedia. Okay. Hello, sir. Okay, and Anjali, let me thank you for the time which you spared, and let me congratulate you also for a selection in very prestigious Maharatna company IOCL. Yes, sir. Thank you, sir. And it's a pleasure talking to you, sir. Yeah, so Anjali, you're a chemical engineer and you got selected in IOCL first Yes, after sir. you qualified at CBT and then interview stage. So I'll be interacting with you, Anjali, and the purpose of this interaction is to know about you and your journey, and to know something about how you cracked all these exams, CBT and interview GT, everything. So we start with your background first, Anjali. Please tell us which part of India you're from और आपका क्वालिफिकेशन आपका एकेडमिक्स कैसा रहा आपने ग्रेजुएशन वगैरह कौन से कॉलेज से किया कहाँ से किया एंड Mhm. व्हाट वाज द जर्नी आफ्टर कॉलेज. Yes, sir. So basically, I'm Anjali Shah. I'm from Jharkhand. So I belong to a place called Maithan in Dhanbad district. So I have done my schooling from there itself. After which, for my college, I did it from BIT Sindri, Birsa Institute of Technology, Sindri. And thereafter, through campus placements, I got into JSW Steel. I was working in JSW Steel. I was a 2023 batch pass out, and I was Hmm. working in JSW Steel for 1.9 year, matlab one year, 9 months approx. And after which, I left my job in this May 2025 and started Hmm. preparing for PSU examinations. Hmm. Okay, so Anjali, you worked almost 2 years in Yes, sir. JSW Steel, and that is very prestigious organization. Yes, sir. So, were you also simultaneously preparing in the job, और आपने जॉब छोड़ने के बाद तैयारी स्टार्ट किया? सर ऐसा था कि लाइक जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मेरे को ऐसा था कि मैं एक्सपीरियंस एक बार गेन करती हूँ आई ट्राई Hmm. टू लर्न वॉट एवर अपॉर्चुनिटी दैट द जॉब गिव्स मी तो मैंने Hmm. उसके रिस्पेक्ट में काम करना स्टार्ट किया फिर Hmm. बैक ऑफ द माइंड एक था कि बीइंग अ केमिकल इंजीनियर अभी सभी के ड्रीम रहता है कि दे गेट इनटू ऑयल सेक्टर दे गेट इनटू वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज गेट अ Hmm. एक्सपीरियंस ऑफ दैट सो आई वाज Hmm. बेसिकली वर्किंग इन स्टील इंडस्ट्री which Okay. was related to a bit to my Hmm. academics but not wholly related so I felt like the need कि ठीक है मुझे उधर का कुछ ड्रीम है तो मैं उस उधर परस्यू करती हूँ but Hmm. simultaneously with the job it was getting difficult like by May by February 2025 I gave the gate examination Okay. so Hmm. उसमें स्कोर उतना ढंग का नहीं आया क्योंकि जॉब के साथ एकेडमिक्स बैलेंस करना हो नहीं पा रहा था सो Hmm. फिर आई ट्राइड कि हाँ ठीक है आई टेक अ ब्रेक आई प्रिपेयर सोली फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड आई टुक दैट डिसीजन एंड आई रिजाइन फ्रॉम माय जॉब बाय द एंड ऑफ May 2025. Hmm. Okay, Anjali, so you were writing GATE exam also, and then you wrote this CBT of IOCL also. Mhm. So please tell us, like IOCL ने जो अभी पहले तो गेट के थ्रू लेता था IOCL, लेकिन इस बार उन्होंने CBT किया. So how many seats of chemical engineers were advertised in IOCL, and what was the pattern of CBT of IOCL? Yes sir, yes sir. Like sir for IOCL उन्होंने 152 वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट करी थी जो कि काफी बड़ी Hmm. वैकेंसी होती है फॉर अ पीएसयू क्योंकि Hmm. जनरली अगर हम देखते हैं तो कोई भी 20-30 ऐसी वैकेंसीज हमें देखने मिलती है कभी इतनी बड़ी वैकेंसी आती नहीं है और ये Okay. फर्स्ट टाइम था कि आईओसीएल सीबीटी एग्जामिनेशन करा रहा है सो और ऐसा पैटर्न था कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें Hmm. हाफ एप्टीट्यूड हाफ टेक्निकल सो Hmm. अगर टाइम रेंज कम दे रहे हैं तो आई गॉट दैट पॉइंट कि जरूर क्वेश्चंस थोड़े इजी या मॉडरेट टू इजी लेवल के रहेंगे सो Hmm. सभी के Hmm. लिए न्यू है अच्छी अपॉर्चुनिटी है ज्यादा वैकेंसी है सो आई Hmm. ट्राई टू गिव माई बेस्ट फॉर इट Hmm. So again, I'll ask you the same question, 100 question, and उसमें 50% आपके technical और 50 aptitude. So what was the time duration given for 100 questions? सो इट वाज लाइक 2.5 hours 2.5 hours. हाँ और Okay. उसके रेस्पेक्ट में आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस रहेंगे टेक्निकल के एंड And what is the level of difficulty of technical and aptitude? सर ऐसा था कि टेक्निकल वाज इजी टू मॉडरेट लेवल के जब Hmm. मैंने गेट का प्रिपरेशन करा था तो गेट के अगर 1 मार्क के पीवाईक्यू मैं उठाती हूँ तो सिमिलर पैटर्न देखा जा रहा था लाइक 60 to 80% वाज मैचिंग विद गेट का पीवाईक्यू Okay. Hmm. So और could अगर you complete? एप्टीट्यूड Hmm. Please go ahead. Hmm. yes sir like for the aptitude part if I'll speak then aptitude was a bit lengthy but the question were of easy and moderate level but they were a bit lengthier
Hmm. Okay, by any means, have you written HPCL exam also? Yes, sir. I gave HPCL exam. Okay, so can you share your, opinion about the CBT of HPCL also? Yes, sir. HPCL मैंने दिया था. Like when I came after my job, मतलब resign from my job during like end of May. तो जून में एडवर्टीजमेंट आया था अबाउट HPCL. तो मेरे पास 2 महीने थे टू प्रिपेयर HPCL का एग्जामिनेशन के लिए. उसमें भी ऐसा था सर कि 85 क्वेश्चन एज पर आई रिमेम्बर 85 क्वेश्चंस रहते. 170 मार्क्स का टोटल का पेपर रहता है. एंड उसमें भी हाफ टेक्निकल हाफ एप्टीट्यूड ऐसा था. Right. सो Hmm. मैंने 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स प्रिपेयर करा. मैंने अगस्त में ये दिया उसका सीबीटी Hmm. दिया. Hmm. उसमें भी सर ऐसा था कि मेरे 3 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ आए. Okay. Okay. तो लेकिन उतनी प्रिपरेशन हुई नहीं थी 2-2.5 महीने में कि एक ऐसा रहता है पीएसयू में जनरली 85% दे गिव वेटेज टू दी सीबीटी एग्जामिनेशन. Yes. तो Yes. उतना हायर मार्जिन से मेरे कट ऑफ से ऊपर आए नहीं थे नंबर. तो Hmm. ओवरऑल में जब कंपोजिट स्कोर बना उसमें मैं रह गई. तो फिर Hmm. नेक्स्ट में मैंने ऐसा ट्राई किया कि जब मैं आईयूसीएल का दूंगी तो एक Hmm. हैवी मार्जिन से आगे रहूं सीबीटी में. दैट विल बी अ वेरी गुड स्टार्ट. Hmm. ओके ओके. सो अंजलि, डिफिकल्टी लेवल आपको सीबीटी का कैसा लगा एचपीसीएल का, एंड हाउ डू यू कंपेयर इट विद आईयूसीएल? सर एचपीसीएल में मैं देख रही थी कि मोर स्पीड बेस्ड टेस्ट था. ओके. ज्यादा ही बहुत क्वेश्चंस थे बहुत और इजियर थे एज कम्पेयर टू आईयूसीएल. ओके. क्योंकि ऑब्वियसली उसमें उसमें आपको क्वेश्चन ज्यादा थे. हाँ. 100 क्वेश्चन 150 मार्क्स, और वहां पे मेरे को लगता है आपने बताया कि 170 क्वेश्चंस थे. 170 और क्वेश्चंस. हाँ, आई डोंट नो व्हाट वाज द टाइम देयर आल्सो. इट्स हाउ मच दे गिव यू 2 hours और व्हाट फॉर बोथ? हाँ दे गेम दे. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली लेकिन हाँ आई ऐसा ही थिंक वन कुछ था. मिनट के आसपास था, इसलिए दैट वाज द हाँ. पॉइंट. हम्म. Any idea about the cutoff of IUCL, Anjali? What was the cutoff for IUCL? ये सब CBT? लाइक जनरल के लिए उन्होंने लगाया था 59 मार्क्स आउट ऑफ Hmm. 100. फॉर Hmm. ओबीसी मतलब मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ तो फॉर ओबीसी इट वाज 51. और Hmm. फिर Hmm. साइमल्टेनियसली फिर एससी एसटी के लिए 40-49 ऐसा कुछ कट ऑफ था. Hmm. So this you're talking about out of 100, huh? आउट ऑफ 100 आईयूसीएल के लिए. हाँ. Okay, तो 100 में मतलब for the student, what can be the safe score? I mean, 60 is the safe score out of 100. डिपेंड करता है. अगर जनरल कैंडिडेट्स है तो हाँ उन्हें जी. अराउंड 65 to 70 के रेंज में अच्छा. अगर है तो दैट इज सेफ. Okay. अगर आप ओबीसी से आते हो तो लाइक 60 to 65 60 to 70 60 से जो भी प्लस जाता है वो तो सेफ ही है. Okay. अच्छा, फिर now this is CBT, and how many number of times they call for the interview then, Anjali? नंबर ऑफ टाइम्स सर मतलब कितने कैंडिडेट, जैसे अगर 150 वैकेंसीज हैं, तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टाइम्स को वो इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाते हैं यूसीएल में? आईयूसीएल में सर एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं लगा कि क्योंकि हर सेंटर्स में अलग अलग कितने कैंडिडेट्स. लेकिन जनरली अगर पीएसयू फॉलो करते हैं 1:7 का रेशियो हो गया या 1:5 मिनिमम हम्म. तो इतना बुलाएंगे ही. Okay, so now coming to your IUCL GD GT interview, please share with us your experience. What was the GT? What was the GD? And how was the interview? यस सर. लाइक मेरा इंटरव्यू जो था वो 26 नवंबर को शेड्यूल था कोलकाता में. सो Okay. हमारे में लाइक 25 स्टूडेंट्स थे अप्रोक्स Hmm. कैंडिडेट्स थे. देन मेरा बहुत आखिरी में जीडीजीटी इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था लाइक लेट इवनिंग में. तो एट Okay. दैट टाइम इट वाज लाइक जिनका जिनका हो जा रहा है दे वर सेट टू गो. तो वो लोग Hmm. चले जा रहे हैं तो हम लोग कुछ ही लोग बचे थे. लास्ट Hmm. बैच था मेरा. फिर मेरा जीडी हुआ. तो Hmm. एक पैनलिस्ट में एक मैम थी. उन्होंने Hmm. जीडी का टॉपिक दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे. थोड़ा Hmm. आप लोग को रिफ्लेक्ट करना है. ठीक है. उस पे Hmm. बात हुई. सेकेंड Hmm. नंबर हमें जीटी का एक टॉपिक दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि आप आईओसीएल के रिप्रेजेंटेटिव हो और आपको एक वुमेन्स डे के लिए एक एम्पावरिंग लोगो बनाना है जिसमें Okay. आप प्रमोट करो आईओसीएल को भी एंड वुमेन्स को भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी Hmm. दिखाओ. तो उस लोगों में क्या होना चाहिए? Was that the task? यस. वो लोगो फ्रेम करो. लाइक उसके लिए कोई टैगलाइन एक मोटो लिख दो. उसको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करो कि आप कैसे वुमेन को भी एम्पावरिंग दिखा रहे हो और कैसे आईओसीएल की भी मार्केटिंग कर रहे हो. Okay. Okay. So were you supposed to design the logo or something? No. यस. लाइक हाँ दे गेव अस द पेपर एंड दे गेव लाइक
6 मेंबर्स थे हम लोग, एंड दे वर टेलिंग, वो मैम बोल रही थी कि आप लोग खुद से डिसाइड करो, डिस्कस करो, यू मेक अ लोगो प्रॉपरली, एंड देन उसमें आपको एक मोटो टैगलाइन टाइप का आप डालो खुद से डिस्कस करके. सो शी वाज देयर टू लिसन ऑल्सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, एंड आफ्टर ओके. दैट शी टुक द पेपर. हाँ. तो आप सब लोगों ने मिलके एक लोगो बना लिए थे क्या? यस, यस. वो हम ओके, लोगों ने सो यू किया आर था, लाइक गिविंग हम लोगों आइडियाज. ने ये बोला था कि उसमें यू गिव अस फ्यूल, विल गिव यू विंग्स, ऐसा करके कुछ कुछ टैगलाइन बनाया, एक अर्थ बनाया, ऐसा मतलब थोड़ा सा ऐसा बनाया था ओके. हमने. ओके. ओके. सो व्हाट, हाउ मच वाज द टाइम गिवन टू यू? द सेम ग्रुप का जीटी और जीडी हुआ? सेम स्टूडेंट्स वर देयर इन जीडी हाँ, जीटी? सेम, लाइक पहले जीडी हो गया, फर्स्ट 10 मिनट्स हो गया जीडी, उसके बाद फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, एंड देन फिर वही कैंडिडेट्स का 10 मिनट्स का जीटी. So Anjali, do they provide you pen and paper or writing stuff for यस, यस, GDGT? Okay. यस. Okay. And what is the duration for that? They'll give like 10 minutes, 5 minutes for thinking, and then 10 minutes you have to frame your points and speak also. Okay. Now coming to interview part, Anjali, how was it? So if you can, if you remember some questions of technical or HR, please share with us. यस सर. जैसे ही सर मैं इंटरव्यू के लिए गई, लाइक इट वाज लाइक आई वाज द सेकंड लास्ट कैंडिडेट. सो मेरे को ऐसा था कि पता नहीं क्या परसेप्शन बन जाता है, ऑलरेडी 24-23 लोग जा चुके हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी पुट अप ऑन मी, क्योंकि वो ऑब्वियसली इतने सारे बच्चे गए हैं, कैसा परसेप्शन है, क्या जा रहा है, ये सब बैक ऑफ द माइंड चल रहा था. देन आई एंटर्ड, Mm, आई वाज लाइक व्हाट एवर बी इट, मैं तो अपना बेस्ट दूंगी जैसा भी कर सकूं. So they mm, firstly asked about myself, basic introduction दो, कहाँ से आते mm, हो, क्या करते हो, क्या क्या करा है. And the mm, second question was obviously they'll ask why did I resign my job? Because it's mm, very hard. Actually, through campus placement, I already got a job, and it's very mm. difficult in this market to leave a job and then prepare for something. So they Yes. asked it. So I told them that I had interest in this field, and Okay. back of the mind from 2 years, I was thinking that I'll execute, and not getting enough time Mm, to do it. So they mm, were like, okay, if we give you marketing also, marketing division, how will you use your knowledge? mm, I was like, okay, even if I'm interested in this field, but obviously opportunities मिलती है तो लोग explore करना चाहते हैं. They'll always look forward to newer things in life. mm, So ऐसा mm, करके मैंने बोला, mm, करियर ग्रोथ है, अच्छी स्टेबिलिटी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, ये सब mm, ऑब्वियसली आप एक पीएसयू ज्वाइन करते हो तो आपको मिलती है. ऐसा mm, करके आंसर करा. फिर mm, नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड अबाउट माय कॉलेज, लाइक माय mm, कॉलेज इज अ बिट ओल्ड कॉलेज, जो mm, mm, 1949 में एस्टेब्लिश हुआ है. तो दे वर लाइक, अभी क्या नए नए अपलिफ्टमेंट्स आ गए कॉलेज में, रिगार्डिंग mm, कॉलेज में न्यू ब्रांचेस खुले हैं, एंड mm, छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने कि mm, हाँ अच्छा रेसिडेंशियल बढ़ गया है क्या, ये सब थोड़े बहुत. फिर उसके mm. बाद दे स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट माय कॉलेज इंटर्नशिप दैट आई डिड Okay. फ्रॉम टाटा पावर ऑन वाटर Mhm, ट्रीटमेंट. सो दे आस्क्ड mm, मी बेसिक क्वेश्चंस अबाउट इट, लाइक mm, अगर पीएच क्या होता है वाटर का, एंड mm, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट दैट यू डू इन वाटर, एंड देन mm, व्हाट इज द सेकेंडरी प्रोसेस इफ वी वांट mm, बॉयलर के लिए वाटर, देन देयर इज अ mm, डीएम प्लांट. तो ऐसा करके mm, मैंने बताया. और फिर mm, थोड़ा एक मुझे लगा कि दे विल आस्क अबाउट आईओसीएल, क्योंकि आईओसीएल का इंटरव्यू दे रही हूँ तो पूछेंगे कुछ टेक्निकल. सो देन mm, दे आस्क्ड अबाउट कि हाँ पेट्रोल के क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा बताओ, और mm, डीजल के क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में बताओ. तो मैंने बताया कि हाँ सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, इन सबका इन्फॉर्मेशन उन्हें दिया. फिर mm, लास्टली दे वर लाइक हाँ हाँ हॉबीज अब थोड़ा बता दो. लास्ट लाइक माय इंटरव्यू लास्टेड फॉर अप्रोक्स 10 to 15 minutes, नॉट मोर देन दैट. सो mm, दे लास्ट में उन्होंने पूछा हॉबीज का थोड़ा बताओ. देन आई वाज इन्वॉल्वड इन स्पोर्ट्स एंड आई वाज वेरी एक्टिव, सो आई सेड हाँ सर आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन एंड ऑल. देन ये दे आस्क्ड कि आपने ऑस्ट्रेलिया ओपन देखा है क्या, कौन जीता एंड ऑल. सो इन अ लाइटर mm, नोट दे एंडेड माय इंटरव्यू. mm. Okay, so Anjali, you have done job also. So what do you think, यस. they asked you more question from HR or technical or job? So which domain they asked you more questions? So it was totally mixed. Like, first of all, when Okay. I entered, I gave my introduction. They asked me why you left the job, what were you Mm, working there, what profile. mm, So mm, that was the first question. After that, they mm. switched to what I did in my college, like the Okay. Mm, college environment या college का internship, वो सब पे आए. mm, फिर mm, lastly दे second last में वो लोगों ने पूछा कि थोड़ा पेट्रोल के पैरामीटर्स बताओ. तो एक एक क्वेश्चन सारे रोमेन से उन्होंने कवर करे, लास्ट में एचआर क्वेश्चन.
So Anjali, when you started preparing, were you equally preparing for technical and non-technical, or there are some students who are very good in technical but not very good in non-technical, like those who are aspiring for GATE? So could you find non-technical or aptitude part also easy to crack, or what? सर एक्चुअली मेरा क्या हुआ था कि मैंने मई में लास्टली अपना जॉब छोड़ा, तो मैंने बहुत ज्यादा टच में नहीं थी टू टेक्निकल हाँ टॉपिक्स जी। ओनली। अच्छा। क्योंकि आप काम करते हो तो टेक्निकली बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हो, जो राइट। सब्जेक्ट आप नहीं कर रहे हो काम। हाँ जी, हाँ तो जी। मेरा टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने हम्म। ग्रूम करा कि ठीक है मैं 6 मंथ्स ट्राई करती हूँ, लेकिन एप्टीट्यूड वाज अ पार्ट दैट आई वाज गुड एट फ्रॉम द स्टार्ट ओके। ओनली। ओके। सो मेरे को वो एज मिला कि आई स्कोर्ड गुड, लाइक आउट ऑफ 50 आई स्कोर्ड 40 इन एप्टीट्यूड ओनली। Okay, and total score required was 60 something, huh? I scored 65 Okay. and 25 I scored in technical. I didn't score that well in technical, and 40 I Okay. scored in aptitude. Okay. So that means out of 50, you can score more than 40 in aptitude. Yes, out of 50 I scored हम्म। 40 in aptitude. Yes, हाँ, और इसमें कट ऑफ कितना है आपका, आपके ओबीसी में कट ऑफ कितना था? 51 गया था। ओ, सो दैट मीन्स ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अगर एप्टीट्यूड में आप अच्छा स्कोर कर लें, दैट कैन बी अ गुड स्ट्रेटेजी, राइट? यस, हम्म। जिन्हें टाइम नहीं मिल रहा है और उनकी एप्टीट्यूड अच्छी है, उन्हें जरूर ट्राई करना चाहिए अगर वो टच में नहीं है सब्जेक्ट से, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती नहीं है। स्मार्टली अगर वर्क करे देन यू कैन क्रैक समथिंग। तो एप्टीट्यूड में कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन या पार्ट है अंजलि जिसपे ज्यादा फोकस करना चाहिए कैंडिडेट्स को? एप्टीट्यूड सर मिक्स्ड आता है, अगर आप देखो तो सारे चीजों के बारे में पूछेंगे, टाइम, ट्रैवल डिस्टेंस, वो सब कोई टॉपिक्स हो गए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, जो भी बेसिक्स आप पढ़ते हो क्लास 10th लेवल पे, वो सब कोई घुमा के पूछते रहते हैं। थोड़ा मेंटल एबिलिटी, ये सब सेगमेंट्स आते हैं। Okay. अच्छा अंजलि, now because IUCL has just started recruiting through अलग से CBT से, तो do we expect more? I mean, every year recruitment will be done by IUCL like HPCL is doing. Yes, sir. Like I talked to one of the candidates. He was telling that his score was low in the like CBT, and when he appeared for the interview, he was told that okay, next vacancy will also come in the next year. So be prepared and work for the best. So ऐसा तो नहीं बोल सकते कि they'll do, but हाँ मोस्टली अब मेरे को लगता है कि वन आएगा। ईयर 2 ईयर के गैप में तो अब आते रहेगा। नहीं, HPCL तो पिछले 2020 से हर साल कर रहा है, हाँ, वो तो एवरी हर ईयर। साल करा रहा हाँ, तो IUCL इज बिगर कंपनी है। एंड यस, बिग। बिगर कंपनी में ज्यादा रिक्रूटमेंट होगी। हाँ। हाँ, होता है उसमें। गेट से भी जब रिक्रूटमेंट होता था तो IUCL यूज्ड टू मास रिक्रूटर, और मेरे को हम्म। लगता है स्ट्रांगली दैट IUCL इज गोइंग टू रिक्रूट एवरी ईयर, सो दैट इज गुड फॉर स्टूडेंट्स. So that is how it was. Anything else, Anjali, which we must have missed and that is of some help to students? कोई ऐसी पॉइंट जो मैंने भूल गया हूँ पूछने और आप बताना चाहें स्टूडेंट्स को? सो Because it's a लाइक wonder. एक चीज मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ कि मैंने एचपीसीएल का इंटरव्यू दिया, आईओसीएल का इंटरव्यू दिया। एक चीज जो मैं देखती हूँ मैक्सिमम कैंडिडेट्स, मतलब अगर मेरी कुछ शॉर्टकमिंग्स है मैं जानती हूँ, लेकिन नर्वसनेस, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो एटमोसफियर ही ऐसा रहता है कि सभी बच्चे आते हैं इंटरव्यू देके, दे स्पीक समथिंग कि हाँ ऐसा ऐसा गया, इट वाज हार्ड एंड ऑल, तो हम प्रेशर में आ जाते हैं एंड वी टेक दैट नर्वसनेस टू ourselves, और उसकी वजह Yes. से हम अंडर परफॉर्म कर जाते हैं कभी कभी। तो ये हम्म। चीज मैं बहुत देख रही थी वहां एचपीसीएल में भी। काफी लोग आते हैं दिल से, ऑब्वियसली सभी का ऐसा ही रहता है, और बच्चे हम्म। अंडर परफॉर्म करते हैं और दे डोंट गिव बेस्ट ऑफ देयर हम्म। कैपेबिलिटीज। सो हम्म। मैंने ऐसा ट्राई किया था चाहे दोनों ही इंटरव्यूज में कि चाहे जैसा भी हो, जैसा भी एनवायरनमेंट चल रहा हो, मैं हम्म। मेरे शॉर्टकमिंग्स हैं ऑब्वियसली, बट हम्म। एटलीस्ट जो मुझे आता है वो तो मैं पूरा परफॉर्म Let करके go. जाऊंगी। इनफैक्ट अगर आपका रिटर्न में कम स्कोर है तो आपको इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स चाहिए, यस। लेकिन आपको ज्यादा एफर्ट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट कैंडिडेट्स क्या करते हैं, डिमोरलाइज होकर एफर्ट और कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है रिटर्न में भी कम है और इंटरव्यू में भी कम आए तो इवेंचुअली आपकी सिलेक्शन नहीं होती. वो और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि शायद अब होगा ही नहीं। यस. यस. सो इट्स अ गुड, वेरी गुड पीस ऑफ एडवाइस अंजलि, दैट अगर आपका स्कोर कुछ भी हो, जब इंटरव्यू कॉल आ गया तो गिव योर 100% फॉर इंटरव्यू, अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आपका होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट गिव योर बेस्ट. तो बहुत अच्छा था अंजलि, एंड अगेन आई थैंक यू फॉर द टाइम यू गेव, एंड आई विश थैंक यू यू ऑल सर। द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर विद IUCL. थैंक यू. थैंक यू सर।